In this session we shall be discussing about the efficiency of stop and wait। कि हमारे पास स्टॉप एंड वेट में ये होता है कि जब सेंडर है कोई अपनी फ्रेम सेंड करता है देन इट वेट्स फॉर द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द रिसीवर सो दैट इट कैन सेंड द नेक्स्ट फ्रेम इन सीक्वेंस। तो टू स्टार्ट विद द एफिशिएंसी ऑफ स्टॉप एंड वेट जस्ट कंसीडर दीज टू टाइम लाइन्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर। और आप मान लो कि हमारे पास ये कोई फ्रेम है दैट वी वांट टू सेंड। This is the length of the frame under consideration. So this is the time when the first bit of the frame gets transmitted. And say for example, this is the time when the last bit of the frame gets transmitted. So after this, it actually covers some distance, that is the propagation delay, to reach to the destination. So this is the time taken by the first bit to reach the receiver, and this is the time taken by the last bit of the frame to reach the destination. So we can say that this is the propagation period of this data frame, and this much of the time is the transmission time of the data, because this is the time taken by the frame to be transmitted from the sender's end, and this is the time taken by the frame to transmit from a sender to the receiver. After reaching the destination or the receiver, some time is taken for the queuing delay. Some queuing delay is there in receiver, because हमारे पास जो रिसीवर है उसमें वो पहले क्यू में आती है, उसके बाद ही उसकी जो है वो प्रोसेसिंग होती है. So this is the time taken for a queuing delay. And say for example this is the time taken for the processing. This is the time taken for the processing. So TT is the transmission delay. This is the transmission delay. TP is the propagation delay, the time taken by the frame to cover the distance between the sender and the receiver, and this is the transmission time, which is the time taken by the frame to come out of the sender, we could say. TQ is the queuing delay, and T process is the processing delay. अब जब हमारे पास सारी प्रोसेसिंग भी हो गई तो उसके बाद जो रिसीवर है दैट सेंड्स द एक्नॉलेजमेंट. सो देयर मस्ट बी सम टाइम फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द एक्नॉलेजमेंट. सो दिस इज द ट्रांसमिशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट. ओके, तो ये इतना सा हमारा ट्रांसमिशन टाइम हो गया एक्नॉलेजमेंट का, बिकॉज द साइज ऑफ द एक्नॉलेजमेंट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द फ्रेम. सो द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट इज मच स्मॉलर देन दैट ऑफ द ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द फ्रेम. सो आफ्टर दैट दिस एक्नॉलेजमेंट covers some distance to reach from a receiver to sender, and that time we denote it as a transmission total time for the propagation for this acknowledgement. Okay, this is the propagation delay for the data frame, and this is the propagation delay for the acknowledgement. So these are the timelines for a sender and a receiver. Okay, तो जो हम एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं उसका जो फॉर्मूला है वो आप ध्यान में रखें. वो है हमारे पास यूजफुल टाइम मीन द टाइम टेकन बाय द फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन डिले. सो दिस इज यूजफुल टाइम डिवाइडेड बाय टोटल साइकिल टाइम. दिस इज total cycle time.
total cycle time is this much of time. This first this, then propagation, then all these times, and then the acknowledgement. So this complete cycle from sender to receiver and then back from receiver to sender is the total cycle time. So first of all we calculate what is the total cycle time. Total cycle time is actually the addition of all the time that are being considered during the transmission from sender to receiver and back to the receiver, back from receiver to the sender. So हम total time को calculate कर सकते हैं. First of all this transmission time for the data, then transmission के बाद propagation time for this data, then queuing delay, then processing delay, and after that transmission time for the acknowledgement plus propagation time for the acknowledgement. So this is the total cycle time. Now we have to actually consider all these values. अब हमें पता है कि जो प्रोपेगेशन टाइम डेटा का है और जो प्रोपेगेशन टाइम एक्नॉलेजमेंट का है, that is equal. So we can say that the propagation delay for the acknowledgement, okay, this implies that this is equal to transmission propagation delay of the data. This is equal to this. And also since जो ट्रांसमिशन टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट है दैट इज मच स्मॉलर देन द ट्रांसमिशन टाइम फॉर द डेटा, सो आई कैन से दैट ट्रांसमिशन टाइम ऑफ द एक्नॉलेजमेंट is very less as we compare it with the transmission time of the data. So these are the two considerations. TQ and T processing, as compared to these times we take it as a 0. So T queuing and T processing, they both are equal to 0. Okay, so now substitute all these values in the total cycle time. So total time comes out to be this first transmission time for the data plus propagation time of the data plus this is 0, this is 0, this is acknowledgement time for this is the transmission time for the acknowledgement which is negligible, plus TP of the acknowledgement which is equal to the TP of the data. So I can write it as a TP or TP of data. So now simple arithmetic calculation, it comes out to be TT of data plus these two times are equal, so I can write it as 2TP. Okay, यहाँ तक. उसके बाद सब्स्टिट्यूट दिस एफिशिएंसी जब हमने कैलकुलेट करनी है, यूजफुल टाइम मीन्स दिस मच टाइम, ट्रांसमिशन टाइम फॉर द फ्रेम डिवाइडेड बाय टी प्लस 2TP. ओके, तो ये किसके बराबर हो गया? हम टी से इसको भी डिवाइड कर देते हैं और इसको भी डिवाइड कर देते हैं, कोई फर्क नहीं है. तो जब मैंने इसको भी टी से डिवाइड कर दिया, जस्ट टू हैव सम सिंप्लीफिकेशन, टी को हमने इससे भी डिवाइड कर दिया, ओके, प्लस 2TP ओवर टी. तो ये आपस में कैंसिल हो गए, तो ये क्या आ गया 1
ये भी कैंसिल हो गया आपस में, तो 1 प्लस 2, और ये क्या आ गया TP ओवर TT। हम इसको डिनोट कर लेते हैं विद दी A। सो A कैन बी रिटर्न एज, हम यहाँ पे लिख देते हैं इसको साइड में। सो A इज इक्वल टू TP over TT। So this comes out to be the efficiency of a stop and wait. So we can write it as a efficiency of the stop and wait protocol is 1 over 1 plus 2A. So here is the way how we can calculate the efficiency in a stop and wait protocol. Now we will calculate the throughput. थ्रूपुट को हम बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन भी बोल देते हैं या इफेक्टिव बैंडविड्थ भी बोल सकते हैं। तो जो थ्रूपुट के निकालने का फॉर्मूला है, अभी हम इसको डिनोट कर रहे हैं टीपी से। थ्रूपुट दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ बिट्स दैट वी आर सेंडिंग। सो नंबर ऑफ बिट्स दैट वी आर सेंडिंग इज इवेंचुअली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द फ्रेम। क्योंकि हमारे पास ये अगर लेंथ ऑफ द फ्रेम है तो इसमें कितने नंबर ऑफ बिट्स हैं जो हम ट्रांसमिट कर रहे हैं। सो दिस इज इवेंचुअली इक्वल टू द लेंथ ऑफ द फ्रेम। सो इट इज कैलकुलेटेड एज L ओवर सेम TT प्लस 2 इंटू TP। ठीक है, जो टोटल टाइम हमारे पास कैलकुलेट होके आया था लास्ट स्लाइड में, जब हमने टोटल टाइम कैलकुलेट किया था तो हमारे पास ये वाला आया था TT प्लस 2 TP। सो दिस इज अ टोटल टाइम। तो जो थ्रूपुट है दिस इज इक्वल टू दिस। हम क्या कर रहे हैं, हम इसकी कैलकुलेशन करने के लिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम L को बैंडविड्थ से ही डिवाइड कर रहे हैं एंड वी आर मल्टीप्लाइंग इट विद बैंडविड्थ, ताकि L जो है उसकी कोई फर्क ना पड़े। क्योंकि जिस नंबर से मैंने उसको डिवाइड किया है उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये L का L ही रहा, डिवाइडेड बाय दिस। ओके, तो हमें पता है कि L अपॉन BW दिस इज ऑलवेज एज ए ट्रांसमिशन टाइम, कीप इट इन माइंड। ट्रांसमिशन टाइम is always equal to the length of the bit, length of the frame that we are sending divided by the bandwidth of the link. So this is a TT. So TT divided by this number, और ये जो है इसको मैंने सभी से मल्टीप्लाई कर दिया बाहर ले जाके। So I can write it is this way also. ये जो हमने अभी पीछे ही कैलकुलेट किया, ये हमें पता है कि दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 ओवर A। ये हमने अभी कैलकुलेट करके ये वैल्यू लिखी है एफिशिएंसी। सो दिस मच फैक्टर इज एक्चुअली द एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी इनटू बैंडविड्थ। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ थ्रूपुट। तो हम क्या बोल सकते हैं कि थ्रूपुट इज इक्वल टू the efficiency multiplied by the bandwidth. So this is the way how we can calculate the throughput. So अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसके थ्रू हम ये सारे के सारी चीजों को एक बार एक्सरसाइज करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें हमें ट्रांसमिशन टाइम दे रखा है मान लो 1 ms, और जो प्रोपेगेशन टाइम दे रखा हुआ है वो है ये, और जो बैंडविड्थ दे रखी है हमें वो मानो हमें दे रखी है 6 Mbps। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी। सो एफिशिएंसी का हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस 2 ओवर A। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2, और A हमें पता क्या होता है, A हमारे पास होता है TP डिवाइडेड बाई TT। ये हमने अभी किया। सो TP की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 2,
और टी की वैल्यू क्या दे रखी हुई है 1, सो ए कम्स आउट टू बी 1, तो 2 इंटू 1, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई 1 बाय, सॉरी दिस इज 2, so this is 4, so 1 plus 4 is actually 5, so this comes out to be 1 by 5. तो efficiency जो है that is calculated in percentage, so इसको हम क्या बोलेंगे 1 by 5 into 100, so it comes out to be 20%. so efficiency हमारे पास आ गई 20% of the stop and wait protocol based upon this value given in this example. अब हम निकालते हैं इसी एग्जाम्पल की थ्रूपुट, अगर हम निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। थ्रूपुट का हमने आपको फार्मूला बताया भी कि दिस इज दिस वन, एफिशिएंसी मल्टीप्लाइड बाय बैंडविड्थ। तो थ्रूपुट हमारे पास कितनी आई है 1/5, सो 1/5, और बैंडविड्थ कितनी दे रखी हुई है हमें 6 Mbps, ओके, तो 6/5, दिस इज 6/5, तो ये कितना आया 1.2, तो 1.2 Mbps, सो दिस इज द थ्रूपुट ऑफ दिस एग्जाम्पल। वैसे भी देखो अगर एफिशिएंसी क्या है 20%, तो अगर एफिशिएंसी ही 20% है और हमारे पास टोटल बैंडविड्थ दे रखी है 6 Mbps, तो इसका मतलब कि जो इफेक्टिव बैंडविड्थ है, जितने हम नंबर ऑफ बिट्स इफेक्टिवली भेज सकते हैं, दैट इज द 20% ऑफ द टोटल बैंडविड्थ। तो अगर मैंने इसका 20% निकालना हो 6 Mbps का, तो ये 1.2 Mbps ही आएगा। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन कैलकुलेट द एफिशिएंसी एंड थ्रूपुट of the stop and wait protocol. Thanks for watching.